حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی نامنظور۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعے پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں شدید رد عمل۔ کوٹ غلام محمد میں مولانا حزب اللہ اور محمد عمر خاص خیلی کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں۔ چھانگا مانگا پولیس کی ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی۔ بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کے 4 ارکان گرفتار۔ ملزموں سے 35 لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ، 5 لوڈر رکشہ، 2 موٹر سائیکل، 3 لاکھ روپے نقدی، موبائل فون اور اسلحہ برآمد۔ ملزم راہزنی اور وارداتوں میں ملوث تھے۔ ضلع انتظامیہ پشاور کا کھلونا نما اسلحہ کی دکان اور گودام پر چھاپا، 14 دکانیں اور گودام سیل، 12 افراد گرفتار۔ انتظامیہ کے مطابق گرفتار افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ سخی سرور پولیس کے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی، 2 چور گرفتار، مسروقہ موٹر سائیکل برآمد۔ ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایس ایچ او در محمد لغاری کہتے ہیں کہ تھانہ سخی سرور کی حدود میں جرائم کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ گھوٹکی مہیسرا اسٹاپ پر ٹرالر اور موٹر سائیکل میں تصادم، موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق۔ مقامی پولیس نے لاش کو ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا۔ لاشیں گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا، علاقے کی فضا سوگوار۔ اور پریس کلب وزیر آباد کے 9 منتخب عہدیداروں اور ممبرز کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام، صحافیوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ صدر پریس کلب افتخار احمد بٹ کہتے ہیں صحافت کسی بھی ریاست کا چوتھا ستون ہوتا ہے، ذمہ دارانہ صحافت معاشرے کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد احمد علی۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گھوٹکی عادل پور تھانہ کی حدود جان محمد سوسائٹی کے نزد گاؤں باگوڑا چاچر میں چاچر برادری کے 2 گروپس میں تصادم کے نتیجے میں 1 بچی قتل، 2 خواتین سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں اکبر چاچر اور دیگر نے مخالفین پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ گاؤں کے بااثر شخص بنوراز چاچر نے ہمارے گھروں پر حملہ کر دیا، جس کے باعث آسیہ بی بی قتل ہو گئی اور 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ آپ کو گھوٹکی سے خبر دے رہے ہیں، جہاں عادل پور تھانہ کی حدود جان محمد سوسائٹی کے نزدیک گاؤں باگوڑا چاچڑ میں چاچڑ برادری کے 2 گروپس میں تصادم کے نتیجے میں 1 بچی قتل، 2 خواتین سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں اکبر چاچڑ اور دیگر نے مخالفین پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ گاؤں کے بااثر شخص رب نواز چاچڑ نے ہمارے گھر پر حملہ کر دیا، جس کے باعث آسیہ بی بی قتل ہو گئی اور 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ جمبر ملتان روڈ پر حادثات تھم نہ سکے۔ جمبر اڈا بستی محمد علی کے قریب روڈ کراس کرتے ہوئے 6 سالہ بچہ تیز رفتار کنٹینر کی زد میں آ کر جاں بحق۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ جاں بحق ہونے والے بچے کی شناخت عثمان حیدر کے نام سے ہوئی۔
घोट की मेहसेरा स्टॉप पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल में तसादुम, मोटरसाइकिल सवार मौके पर जान की बाजी हार गए। मुकामी पुलिस ने नाशों की ज़रूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दिया। जाम बहक होने वाले अफराद की शनाख्त अब्दुल हमीद अबड़ू के और अब्दुल मजीद अबड़ू के नाम से हुई है। नाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया, इलाके की फ़ज़ा सोगवार है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि छांगा मांगा पुलिस की डाकुओं के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां। बैनुल इजलाई डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमों से 35 लाख रुपए का माल मसरूका, 5 लोडर रिक्शा, 2 मोटरसाइकिलें, 3 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फ़ोन और असलहा बरामद कर लिया गया। थाना छांगा मांगा पुलिस ने बढ़ती हुई वारदातों के पेश नज़र SHO राहील खान की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दी और इस पेशा वाराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए आसिफ उर्फ कारी गैंग के ट्रेस किया गया। डकैत रिक्शा किराया पर हासिल करते, जिनके दीगर साथी रास्ते में असलहे के जोर पर छीन लेते थे। मुलजिम राहजनी की वारदातों में भी मुलविस हैं, जबकि गैंग का सरगुना इश्तिहारी भी है। मुलजिमों ने दौरान तफ्तीश कसूर समेत दीगर इजला में डकैती की 1.5 दर्जन से वारदातों का इंकशाफ किया है। DPO कसूर ने पुलिस टीम को खतरनाक डकैत गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी है। सियालकोट थाना मुरादपुर के इलाके रतियां सईदा में मनशियात फरोशों के खिलाफ कचहरी चौक में अहले इलाका सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने बताया कि रतियां सईदा में मनशियात फरोशों की वजह से वारदातें मामूल बन चुकी हैं। सजावल को मनशियात खरीदने के लिए आने वाले अफराद को रोकना महंगा पड़ गया। मनशियात फरोशों ने सजावल मसीही को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा शख्स ने DPO को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि रतियां सैयदा से इस मकरूह धंधे का खात्मा किया जाए। नाजरीन, ज़िले इंतजामिया पेशावर ने कार्रवाई करते हुए पिपल मंडी में खिलौना नुमा असलहे की दुकान और गोदामों पर छापा मारते हुए 14 दुकानें और गोदाम सील करके 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पेशावर डिवीजन रियाज खान महसूद ने हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शफीउल्लाह खान ने हर किस्म के खिलौना नुमा असला की खरीदो फरोख्त पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर रखी है। इस सिलसिले में इंतजामिया की टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर उबैद डोगर की निगरानी में पिपल मंडी में खिलौना नुमा असलहे की दुकानों और गोदामों पर छापा मारते हुए 12 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 14 दुकानें गोदाम सील कर दिए। इंतजामिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट जेल सवात में 9 उम्र कैदियों के लिए एक नए स्कूल का इफ्तिताह कर दिया गया। डायरेक्टर सवात रिलीफ इनिशिएटिव एहसानुल्लाह खान ने स्कूल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर असगर सवारानी, डायरेक्टर खप्पल कौर फाउंडेशन मोहम्मद अली और सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अयूब बाचा भी मौजूद थे। ये स्कूल सवात रिलीफ इनिशिएटिव की तरफ से कायम किया गया है, जो एक गैर सरकारी तंजीम है और ज़िला सवात के मुख्तलिफ हिस्सों में मॉडल स्कूल और पेशा वराना मराकज़ चला रही है। SRI के डायरेक्टर एहसानुल्लाह ने कहा है कि स्कूल सवात जेल में 18 साल से कम उम्र कैदियों के लिए तालीम, हुनर और उम्मीद फराहम करेगा। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के MNA मलिक सुहेल खान ने इखलास और पिंडी घेप में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा है कि अदम बर्दाश्त पर मबनी सियासत मुआशरे को तकसीम कर सकती है। सियासी मुखालिफत अखलाकियात की हद पार कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मरियम नवाज का फतह जंग में होने वाला जलसा तारीखी होगा, जिसके लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। हल्का के मसाइल से आगाह हैं। शहर में स्टेडियम, पिंडी घेप, फतह जंग रोड तरजीहात हैं। फतह जंग जलसे में क़यादत को हल्के की मरहूमियों और इससे भी आगाह किया है और इसके हवाले से जल्द वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करूँगा। इस मौके पर ज़िले सीनियर सदर मलिक मुश्ताक आवान, ज़िले जनरल सेक्रेटरी शमशाद खटक, तहसील सदर मुमताज़ भट्टी, साबिक चेयरमैन मलिक आतिफ, तहसील जनरल सेक्रेटरी मलिक आफ्ताब,
نمبردار ملک امتیاز، عمران ملک، ندیم سردار، اعظم شیخ، مسعود الرحمان، حاجی غلاب خان، رحمت الدین بھٹی، خلیل احمد ملک، جلیل چشتی، خلیل شامی اور دیگر بھی موجود تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا میں 3 پولیس افسران کے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ڈی پی او فیصل گلزار کی طرف سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی ایس پی صدر اور سٹی سرکل نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں عادل رشید کی رپورٹ میں۔ اوکاڑا میں 3 پولیس افسران کی اجتماعی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ڈی پی او اوکاڑا فیصل گلزار کی جانب سے پروقار افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈی پی او اوکاڑا، ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی ایس پی صدر سرکل اور ڈی ایس پی سٹی سرکل نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بھرپور شرکت کی۔ اپنی سروس کو احسن طریقے سے مکمل کرنے والے پولیس افسران میں انسپکٹر محمد اشرف، سب انسپکٹر محمد عظیم خان، سب انسپکٹر غلام مرتضیٰ بلوچ شامل ہیں۔ ڈی پی او اوکاڑا فیصل گلزار نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک پولیس جوان عوام الناس کی خدمت کرتے ہوئے اپنی تمام زندگی اسی مقصد میں وقف کر دیتا ہے، اور ایسے پولیس کے شیر جوان اپنے فرض کی ادائیگی پر اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ اس افطار ڈنر کا مقصد یہ ہے کہ پولیس افسران اپنے متحد جوانوں کی حوصلوں کو بلند کریں۔ پولیس نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں سحری، تراویح کے اوقات اور رمضان بازاروں میں شاندار ڈیوٹی سر انجام دی، جس پر ڈی پی او اوکاڑا فیصل گلزار نے تمام افسران کو شاباش دی اور ریٹائرمنٹ پانے والے افسران کو خراج تحسین پیش کیا۔ ساہیوال شہر میں عید الفطر کے قریب آتے ہی لوگوں نے کیک کی خریداری شروع کر دی۔ دکانوں پر کیک خریدنے والوں کا رش۔ مزید جانتے ہیں فہیم صدیقی کی رپورٹ میں۔ عید ہو اور عید پر میٹھا نہ ہو تو عید پھیکی پڑ جاتی ہے، خاص طور پر عید کیک تو عید کا مزہ دوبالا کر دیتا ہے۔ عید کیک کی خریداری تو عید سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ رنگین، خوبصورت اور میٹھا کریم کیک خریدا جائے، گفٹ بھی کیا جائے اور خوب کھایا بھی جائے۔ اس طرح پھیویاں تو عید کی سوغات ہیں، پھیویوں کے بغیر عید کا مزہ ہی نہیں آتا۔ عید پر خوب پھیویاں کھائی جاتی ہیں اور عید کا تحفہ پھیویوں کے بغیر ادھورا لگتا ہے۔ عید کی نماز کے بعد گھر آ کر میٹھے میں پھیویاں مل جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ آپ بھی خوب عید پر میٹھا کھائیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ کیمرامین حمزہ کے ساتھ فہیم صدیقی۔ رپورٹ آپ نے جانی۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اب آپ کو بتائیں کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی محمد نعیم اختر کا کہنا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر شہر میں صفائی کے بہترین انتظامات کے لیے کمپنی مربوط حکمت عملی کے تحت کام کرے گی۔ صفائی پلان کے حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی رپورٹ میں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی محمد نعیم اختر نے کہا کہ عید الفطر کے موقع پر شہر بھر میں صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے کمپنی مطلوبہ حکمت عملی کے تحت کام کرے گی۔ اس سلسلے میں عید الفطر صفائی پلان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عید الفطر کے یہاں میں شہر بھر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال کو برقرار کرنے کے لیے سٹاف کی عید کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ تمام افسران 880 سینٹری ورکرز روٹین کے مطابق عید الفطر کی چھٹیوں میں اپنی فرائض سر انجام دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے عید الفطر صفائی پلان کے حوالے سے اپنے دفتر میں جاری کردہ ایک بیان میں کیا۔ سی ای او کمپنی محمد نعیم اختر نے بتایا کہ عید الفطر کے قبل چاند رات سے ہی شہر بھر کی تمام چھوٹی بڑی عیدگاہوں، مساجد، امام بارگاہوں، ان سے مل کر راستوں کو صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ چونا ڈالنے کا انتظام مکمل کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی امتیاز اللہ، مینیجر آپریشن ہوں بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں۔ تو عید الفطر کے انتظامات کے حوالے سے جو آپ سے میں کچھ باتیں جو کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ ہماری جو ٹوٹل مشینری ہے، ہمارا سٹاف ہے، وہ سارا پابند ہے۔ عید کے اوپر ہم نے سٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں اور ہماری کوئی 100+ وہیکلز آن روڈ ہوں گی عید کے اوپر، اور جو بھی جتنی بھی مساجد ہیں، عیدگاہز ہیں، ان کو آنے جانے کے رستے ہیں، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی۔ کیمرہ مین خرم استاد کے ساتھ فضل جاوید خان۔
SHO थाना इलाहाबाद हाफिज आतिफ नज़ीर की जानिब से शहर में बेहतरीन नाकाबंदी, एलीट फोर्स की कामयाब कार्रवाई, 2 मशकूक अफराद से 2 पिस्टल, 9mm और 30 बोर बरामद कर लिए गए। ईद के करीब आते ही डाकू बेकाबू, चोरी डकैती की वारदातों में इजाफे की रोकथाम के लिए SHO इलाहाबाद इन एक्शन देवखारा के करीब एलीट फोर्स के जवानों ने मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया, ना रुकने पर गाड़ी का पीछा किया। एलीट फोर्स के जवानों ने मशकूक गाड़ी को रोककर तलाशी ली, पर 2 मशकूक अफराद से 2 पिस्तौल, एक 9mm और एक 30 बोर बरामद कर लिए गए हैं। कामयाब कार्रवाई पर इलाहाबाद के शहरियों ने एलीट फोर्स के जवानों को खराज तहसीन पेश किया। DPO ऑफिस हाफिजाबाद में तकरीब हवालगी माल मसरूका का इनाकाद। SP इन्वेस्टिगेशन खालिद महमूद तबस्सुम ने 1 करोड़ 73 लाख से ज़्यादा मालियत का माल मसरूका 134 मालिकान के हवाले किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस हाफिजाबाद में मुख्तलिफ मकामात से मिलने वाला माल मसरूका मालिकान के हवाले किया गया। माल मसरूका में 35 लाख नकदी, कारें, तलाई ज़ेवरात, मोटरसाइकिल, ट्रांसफार्मर, ज़री आलात, माल मवेशी, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन समेत दीगर अशिया शामिल हैं। DPO हाफिजाबाद के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमों के खिलाफ ज़िला भर में संगीन जराइम के 134 मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिमान डकैती, राहज़नी, स्ट्रीट क्राइम, हाईवे राहदारी, मवेशोरी, नकबजनी जैसे जराइम में मुलव्विस हैं, जिनसे बड़ी तादाद में वारदातों में इस्तेमाल होने वाला जदीद असलहा भी बरामद किया गया है। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने हाफिजाबाद के अलावा पंजाब के दीगर इलाकों में वारदातों का इंकशाफ किया है। नाजरीन, कोरोना वायरस के खात्मे के बाद 2 साल बाद मार्केटों की रौनक के बहाल, ईद की खरीदारी के लिए आवाम का रश। मजीद जानते हैं, कराची में मौजूद है हमारे नुमाइंदे अरशद महमूद मलिक। जी अरशद महमूद, आगाह कीजिएगा, शहरियों का कितना रश दिखाई दे रहा है? जी 2 साल कोरोना की पाबंदियों के बाद तीसरे साल जो है वो बाज़ार की रौनकें बहाल हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के सदर इलियास मेमन साहब हैं। इनसे पूछते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम इलियास भाई। जी इलियास भाई, 2 साल बाद कोरोना ख़त्म हुआ है, पाबंदियाँ ख़त्म हुई हैं, मार्केट के अंदर रश नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? ख़रीदारी में कुछ इजाफा हुआ है? देखिए 2 साल कोविड हुआ तो कारोबार बंद था, इस वक्त कारोबार खुला है। परचेजिंग पावर नहीं है, महंगाई की वजह से इतनी महंगाई हो गई कि पूछो मत। 35 से 40% खरीदारी है, विंडो शॉपिंग ज़्यादा है, अंदर कस्टमर नहीं है, मार्केटों में कस्टमर नहीं है, इसलिए मुझे अंदर खरीदने जा, इतनी महंगी चीज़ है वो तो यार बहुत महंगी चीज़ है, लोग परेशान है महंगाई की वजह से। आप इसकी 20,000 25,000 तंग का वो चारों कुछ काम ना राशन खरीद सकता है, ना बच्चों को फीस भर सकता है, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, सब चीज़ महंगी हो रही है। इस पर रौनक नज़र आ रही है, ये भी आज रौनक नज़र आ रही है, कल तो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा होता। आज हमने 1 हफ्ते से कैंप लगाया हुआ पूरा, लेकिन इतनी रौनक नहीं है, 2-2.5 बजे रौनक खत्म हो जाती है। अब देखो 2 दिन और रहेगा कितना कारोबार हो जाएगा। हमने हैदरी में भी सर्वे कराया, हमने सदर में भी सर्वे कराया, सब जगह मालूम करवाया, जूतों वालों को दुकान पे सर्वे कराया। 35 से 40% कारोबार है, इससे ऊपर कारोबार नहीं है। वो बोलेगा तो वो झूठ बोलेगा। मैं इस तारिक रोड पे हब पे बैठा हूँ, हब पे खड़ा हुआ, मुझे अंदाजा है मार्केट में। मैं लेविस मॉल का भी सदर हूँ, मुझे अंदाजा क्या है, लेकिन परचेजिंग पावर नहीं है, कारोबार नहीं है, कारोबार से लोग परेशान, महंगाई वजह से परेशान है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। 2 साल के बाद कोविड में खुला है, लेकिन परचेजिंग पावर नहीं है। जी इलियास मेमन साहब की बातें सुनी आपने, इन्होंने कहा कोरोना की पाबंदियाँ तो ख़त्म हो गई हैं, मगर महंगाई की वजह से। जी अरशद महमूद, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में भी ईद की तैयारियां अरूज पर, कपड़ों और जूतों की खरीदारी आखिरी मराहिल में दाखिल है। इसी बारे में मजीद जानेंगे मलिक मोहम्मद अकरम से। जी अकरम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इलाहाबाद मेन शॉपिंग बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर मीठी ईद की आमद है। बाजार में रश बढ़ गया, किसी को मैचिंग जूतों की तलाश है तो कोई मैचिंग चूड़ियाँ, दीगर एशिया खरीदने में मसरूफ है। जबकि इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी जी बिल्कुल, मीठी ईद करीब है, 1 या 2 दिन बकाया है, तो
जो औरतें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो पूरा जोर अपील कर रहे थे कि भाई हमने मैचिंग जो है चूड़ियाँ खरीदनी है, मैचिंग ही जूते हो और मैचिंग ही कपड़े। भाई कपड़े तो हमने पहले बना लिए थे, इस वक्त हम जूतों की दुकान पे मौजूद हैं, यहाँ से मैचिंग जूता भी मिल गया है। अब हमने जाना है बाजार, वहाँ से मैचिंग चूड़ियाँ लेनी है, क्योंकि ईद बच्चों की होती है, औरतों की होती है, तो इनको खुश करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ हमने बाजार आके महसूस किया है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो पिछले साल 50 की चीज़ थी वो इस बार 120 की मिल रही है। तो हुकूमत से अपील है, हुकूमत वक्त से अपील है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी ईद की खुशियाँ दोबारा कर सकें। जैसे कि शहरियों का कहना है कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, ईद की खुशियों में गरीब आदमी भी शामिल हो। मोहम्मद अकरम आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में सेहत मरकज़ कायम कर दिया गया। माहिर अमराज डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे। 7 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल ZMT की तामीर नौ का काम मुकम्मल हो चुका है। तफसीलात राजा बलूच की रिपोर्ट में। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में देरीना सेहत के मसाइल के हल के लिए सेहत मरकज कायम किया गया है, जहां पर बेहतरीन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। 7 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल ZMT का बाज़ाब्ता इफ्तिताह ईद उल फितर के बाद किया जाएगा। ZMT अस्पताल के तामीर नौ में पीपल्स पार्टी यूसी कैटल कॉलोनी के ओहदेदारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी यूसी कैटल कॉलोनी के रहनुमाओं रसूल खान, जावेद इकबाल काको, जुल्फकार टालानी व दीगर ने सहाफियों को बताया कि ZMT हॉस्पिटल का कयाम भैंस कॉलोनी व गिरदोनवा के आवाम के लिए तोहफा है और ये सेहरा MNA सैयद आगा रफीउल्लाह को और उनकी टीम को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके इस अस्पताल की तामीर नौ में भरपूर किरदार अदा किया। इनका कहना था कि इससे पहले भैंस कॉलोनी के इलाके वार्ड 1 से लेकर नई आबादी, मुस्लिम लीग कॉलोनी, ओड बस्ती, समागोड, कच्ची आबादी तक आवाम को सेहत जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम रखा गया था। लेकिन पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदान और भैंस कॉलोनी की क़यादत ने आवाम का देरीना मसला हल कर दिया है और इस अस्पताल से अब आवाम मुस्तफीद होगी, जहाँ पर उनका मुफ्त इलाज होगा और मुफ्त अदवियात भी दी जाएंगी। मीठी ईद की आमद ईद की तैयारियां अरूज पर। बाजारों में खरीदारों का रश। दुकानदारों का शिकवा है कि महंगाई के बायस कुव्वत खरीद में कमी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अरशद महमूद मुगल की रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुकम्मल खात्मे के बाद मार्केटों की रौनकें बहाल हो गईं। 2 साल बाद इस ईद पर तमाम मार्केटें बिना किसी पाबंदी के मुकम्मल तौर पर खुली हैं। आवाम की बड़ी तादाद बाजारों का रुख कर रही है, जबकि दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के बायस आवाम की कुव्वत खरीद कम हो गई है। वजह यही है कि खरीदो फरोख्त नहीं है, यानी कि परचेजिंग पावर नहीं है। अगर परचेजिंग पावर हो तो सब कुछ आसान हो जाए। अब लाजिम बात है, एक 20,000-25,000 रुपये कमाने वाला इतनी महंगी शॉपिंग तो नहीं कर सकता। सिर्फ ये बिजनेस तबाह होने की वजह यह है कि क्राइम बढ़ गया है। खरीदारों का कहना है कि कोरोना पाबंदियों के बाद इस साल ईद पर खरीदारी करने का अलग मजा है। दुकानदारों और खरीदारों का कहना था कि स्ट्रीट क्राइम के बायस लोगों में डर और खौफ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तो बहुत अच्छा है। जब कोरोना था काफ़ी लोग डर भी गए थे, क्योंकि उसकी वजह से लोग बाहर नहीं आ रहे थे। अब ये कि मार्केटों में एंड के दिनों में काफ़ी रश शुरू हो गया। मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन महंगाई बहुत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लें क्या नहीं लें। और जो है ना, इंजॉय भी हो रहा है लेकिन बहुत अच्छा भी लग रहा है। 2 साल बाद माशाल्लाह इतनी रौनक, रमज़ान की भी, ईद की भी तैयारी। हमने ड्रेस ली है, 2 ड्रेस ली हैं हमने, और स्लीपर्स लेंगे अभी, और अपनी ज्वेलरी वगैरह लेंगे, और पॉनीज लिए अभी हमने। हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कराची में ईद के मौके पर महंगाई का जिन बेकाबू। ताजिर बरादरी का महंगाई के बायस खरीदारों की कमी का शिकवा। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर मगसी। कराची में रमजान के ईद के मौके पर महंगाई का जिन बेकाबू। कराची के ताजरों ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए कहना है कि महंगाई होने की वजह से खरीदारी में कमी हुई है। बेरोजगारी बढ़ने की वजह से स्ट्रीट किराए में इजाफा हो गया। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि ताजरों को रिलीफ दे और महंगाई में कमी करे। इतनी महंगाई कर ली है कि आम आदमी की खरीद कुव्वत से हर चीज़ें बाहर चली गई, यहाँ तक कि खाने पीने की अशिया। समझे ना, ये मुल्क के अंदर ऐसा सिस्टम बना के गए हैं कि गरीब आदमी को बिल्कुल गरीब तर बना के गए, अमीर को अमीर तर बना के गए। अभी आपने देखा मार्केटों में, रोडों पे तो रश है, दुकानें सुनसान पड़ी हुई है। उसकी निस्बत ये है कि पिछले जो कारोबार होता था उसकी निस्बत 20% भी कारोबार नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीफ दें ताजरों को। मसला ये, पहले जो यहाँ पे था काफ़ी रश होता था, वो रश नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। ये सारे क्राइम वगैरह, चोरी डकैती के वजह से
खामोशी चाहिए हुई है और दिन रात चोरियाँ होती रहती है। मैं कहना तो यही है कि मार्केटों के अंदर थोड़े रेट वेट का प्राइस के अंदर थोड़ी सी आई हुई है, लेकिन ये है कि मार्केटें माशाल्लाह प्रॉपर खुल गई है। इधर जो है ना दुकानें प्रॉपर खुल गई है, 120 के ऊपर जो है ना बिल्कुल हटा दी गई है। माशाल्लाह हमारी पुलिस भी अच्छा काम कर रही है, हमारी रेंजर्स है इधर और अपने क्या बोलते हैं उसको ट्रैफिक पुलिस वाले सारे अच्छे काम कर रहे हैं। इधर रश को साइड करवा रहे, ज़्यादा रश नहीं लगने दे रहे। मार्केटों और बाजारों में रेट बढ़ने की वजह से खरीदारी में कमी महसूस की जा रही है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ रमज़ान मुबारक में मारूफ समाजी शख्सियत चौधरी साबिर सुल्तान का एहसन इक़दाम। सियालकोट में समाजी शख्सियत की जानिब से इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनेकाद। 14 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। आपको बताएं कि समाजी रहनुमा चौधरी साबिर सुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये सब अल्लाह और इसके रसूल की रज़ा हासिल करने के लिए किया है। इस मौके पर अहमद साबिर सुल्तान ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पहले हम अल्लाह और इसके रसूल की रज़ा के लिए ख्वाहिशमंद हज़रात को उम्रा के लिए अदायगी के लिए भेजते थे। आज से मुस्तहिकीन की शादियों के सिलसिले का आगाज़ किया। इंशाअल्लाह ये सिलसिला मज़ीद बेहतर होगा। आने वाले साल में इज्तिमाई शादियों की तादाद में इजाफा होगा। आखिर में दुल्हा दुल्हन की चौधरी साबिर सुल्तान ने नकद सलामी और मुकम्मल जहेज़ के साथ रुखसत किया। DGPHA ज़ीशान जावेद की ज़ेर सदारत ईद की छुट्टियों में SOPs पर अमल दरामद के लिए अफसरान के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि DGPHA ज़ीशान जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ईद की छुट्टियों में SOPs पर अमल दरामद के लिए अफसरान को अहकाम जारी किए गए हैं। इस बारे में मज़ीद जानेंगे। रिपोर्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह, आगाह कीजिएगा इजलास की सदारत के हवाले से। जी बिल्कुल, PHA हेडक्वार्टर में ईद उल फितर की छुट्टियों के हवाले से तमाम डायरेक्टर्स का इजलास तलब किया गया। इजलास की सदर DGPHA ज़ीशान जावेद ने की। DGPHA ने ईद की छुट्टियों में SOPs अमल दरामद करने के लिए अफसरान को अहकाम भी जारी किए। DGPHA ज़ीशान जावेद का कहना था कि ईद की छुट्टियों के दौरान ग्रीन बेल्ट और पार्कों की निगहदाश्त का काम लगातार जारी रहेगा। पार्कों में हिफाजती इंतजाम और आवाम की तफरीह के लिए सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। पार्कों में झूलों समेत दीगर तफरीही सवारियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद चलाने की इजाजत होगी। अफवाह में आपको यहाँ ये भी बताया जाएगा कि ज़ीशान जावेद का मजीद कहना था कि पार्कों में मौजूद झूलों पर ओवरलोडिंग और तेज रफ्तारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। कैंटीनों पर गैर मारी अशियाई खोज और ओवर चार्जिंग पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी सलमान शाह, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, रावलपिंडी में फवारा चौक के करीब इकबाल रोड पर तजावजात की भरमार। रेडियां बाजार का मंजर पेश करने लगी। तजावजात की वजह से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर है। तफसीलात रावलपिंडी से अनवारुल हक मुगल की रिपोर्ट में। रावलपिंडी के मसरूफ और अहम मुकाम फवारा चौक और इससे मुल्हिका बाजारों में रेडी बानों और ठिया वालों ने कब्जे कर लिए हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। जराये के मुताबिक फवारा चौक से कमेटी चौक जाने वाली शाहराह इकबाल रोड को लियाकत मार्केट के सामने से बंद करके कारपोरेशन की मुबैना मिली भुगत से बाकायदा बाजार बना दिया गया है, जहाँ गैर कानूनी तौर पर रेडियों और ठियों से मुबैना लाखों रुपए ईदी के नाम पर बटोर लिए गए हैं। उनकी वजह से फवारा चौक पर ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासर हो गई है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस के तर्जमान काशिफ नवीद ने कोई न्यूज को बताया कि ईद के दिनों में इकबाल रोड की एक साइड को ट्रैफिक का तसलसल कायम रखने के लिए बंद कर देते हैं, जबकि तजावजात के हवाले से उनका कहना था इस बारे में कारपोरेशन को भी कहा है कि मुश्तरका ऑपरेशन करके इसका खात्मा किया जाए, लेकिन उनकी तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जाती। दूसरी जानिब कारपोरेशन के मुतल्लिका इंस्पेक्टर इमरान ने कोई न्यूज को बताया कि ट्रैफिक पुलिस के रास्ता बंद करने की वजह से जहाँ पर तजावजात हो रही है, दूसरे मुकामात से भी लोग रेडियां लेकर जहाँ पर आकर लगा रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उनका कहना था कि ईद को 2 दिन रह गए हैं, लोग बदुआएं देते हैं, ईद के बाद पूरे शहर से तजावजात का खात्मा किया जाएगा। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अनवारुल हक। रिपोर्ट आपने जानी। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि सजावल की तहसील मीरपुर भटोरों में अफसोसनाक वाकया पेश आया। कचरे के ढेर से नौमौलूद की लाश बरामद। मुकामी पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को करीबी शहर खामोशा में तदफीन कर दी है। आपको बता रहे हैं सजावल की तहसील मीरपुर भटोरों में अफसोसनाक वाकया पेश आया है।
सीनियर कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस हमजा सालिक और कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक की हिदायत पर एसएचओ थाना सखी सरवर दर मोहम्मद लगारी के एडिशनल एसएचओ साजिद खान लगारी और मुनीर अहमद हमदानी के हमरा कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर करने वाले गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार। मसरूका मोटरसाइकिल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोनों चोर पंजाब से बराह रास्त मसरूका मोटरसाइकिल ले जाते थे। इस मौके पर एसएचओ दर मोहम्मद लगारी का कहना था कि सीनियर कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस हमजा सालिक और कमांडेंट मोहम्मद अकरम मलिक की हिदायत पर थाना सखी सरवर की हदूद में जराइम का खात्मा अव्वलिन तरजीह है। अब आपको बताएं कि जामिया सिद्दीकिया अल कुबरा की तरफ से जामपुर में मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें ख़वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली की क़यादत प्रिंसिपल इदारा फरार रज़ा ने की। शुरका ने डेरा चौंगी पहुंचकर मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में इसराइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। रैली से खिताब करते हुए पीटीआई विमेन विंग राजनपुर के सदर रुकिया जाम गुलाम अली मौलाना साबिर हुसैन ने कहा कि इसराइल के गाज़िबाना कब्ज़े की मज़म्मत करते हैं। फरार रज़ा का कहना था कि इसराइल ने 75 साल से फ़लस्तीन की मुक़द्दस सरज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। क़िबला अव्वल का दिफा दुनिया भर के मुसलमानों की अव्वलिन फ़राइज़ में शामिल है। जलालपुर पीरवाला में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और शिया उलमा कौंसिल की ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जो मशरकी बाजार से होती हुई चौक फवारा पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। मज़ीद जानते हैं एजाज अहमद की रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और शिया उलमा कौंसिल की जानिब से अल-कुद्स लना के नाम से फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जो मशरकी बाजार से होती चौक फवारा पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। रैली के शुरका से उलमा ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि मुसलमानों के हकूक़ दिए जाएँ, और शुरका ने कोहिनूर टीवी से बात करते हुए कहा, आज की ये रैली मुस्लिम फ़लस्तीनियों और क़िबला अव्वल की आज़ादी के हवाले से बरामद की गई है। इस प्लेटफार्म से मैं ये अक़वाम मुत्तहिदा को बावर कराना चाहता हूँ कि वो फ़लस्तीनियों की आज़ादी और क़िबला अव्वल की आज़ादी के हवाले से अपना किरदार अदा करें, और जहाँ कहीं भी बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, इस्लामी कौंसिल को चाहिए कि इसके खिलाफ अपने इक़दाम करके मुसलमानों को जो है ना वो रिलीफ दे सके, और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन को और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुनू लिज़ालिमी ख़स्मन वलल मज़लूम औना। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी मुसलमानों के लिए। रिपोर्ट आपने जानी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि फ़कीराबाद में बैतुल मुक़द्दस कमेटी की तरफ से क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस पर इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ मौलाना ज़ुल्फ़िकार अली, बैग अली और अल्लामा मौलाना सिकंदर अली की क़यादत में रैली निकाली गई, जो बाज़ार से होती हुई फ़कीराबाद प्रेस क्लब पहुंची, जहां मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस पर इसराइली जारियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने से रोका जा रहा है। इसराइली अफवाज की तरफ से बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती की जा रही है, जिसकी मज़म्मत करते हैं। मुल्क भर की तरह दीगर शहरों में भी सजावल में भी इसराइली जारियत और बर्बरियत के ख़िलाफ़ रैली निकाली गई। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और दीगर तंजीमों की तरफ से इमाम बारगाह अल हुसैनी से रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत हाजी मुज़फ़्फ़र लगारी ने की। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि इसराइली फ़ौजी फ़लस्तीनियों को मज़लूम निशाना बना रहे हैं, नौजवानों के शहीद किया जा रहा है, माओ बहनों की इज़्ज़तें महफूज नहीं, मासूम बच्चों की नस्ल कुशी की जा रही है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। हरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती नामंजूर। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल। कोट गुलाम मोहम्मद में अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ मौलाना हिज़्बुल्लाह और मोहम्मद उमर खासखेली की क़यादत में रैली निकाली गई।
शुरका से उलमा इकराम ने खिताब करते हुए कहा कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का भी मुतालबा कर दिया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या बेहुरमती का मुर्तकिब अफराद के खिलाफ एहतजाज, मुसलमानों में शदीद गम व गुस्से की लहर बरकरार, शहर शहर मुजाहरे, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती नामंजूर के फलक शगाफ नारे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला सखर के ज़ेरे तमाम मस्जिद नबवी के बेहुरमती के ख़िलाफ़ ज़िला सेक्रेटेरिएट में से कारकुनों की कसीर तादाद ने या रसूलुल्लाह रैली निकाली और शहर के मुख्तलिफ इलाकों का गश्त किया। शुरका ने हाथों में पार्टी परचम उठा रखे थे। रैली सखर प्रेस क्लब के जुलूस की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली की क़यादत मुस्लिम लीग नून ज़िला सखर के सदर खुर्शीद अहमद मेरानी, मोहम्मद आज़म ख़ान, अहलादाद अहमदपुर लम्हा के नवाही इलाके रहीमाबाद बस्ती कलवाड़ के बिजली की गैर-एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कारोबारी जिंदगी मफलूज, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। ईद का सीज़न चल रहा है, दर्जियों का बिजली की लोड शेडिंग का शिकवा। कहते हैं पहले रोज़ाना 25 सूट बना लेते थे, लेकिन अब बिजली की वजह से 10 सूट बड़ी मुश्किल से बन रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।